Hello dear students, welcome back to my channel. Hope you will everyone fine and safe. In this video, we learn chapter 1 part 2 HTML form using Composer. Let's start it. Open source IDE. First of all, we will learn about open source means what. Open source means a software for which the file original source code is made freely available and may be modified according to the requirement of the user. Means ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो है जो हमें फ्रीली अवेलेबल है, जिसको डाउनलोड करने के लिए हमें कोई भी पेमेंट करना नहीं होता। हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और IDE means IDE is a software application that provides comprehensive facilities to computer programmer for software development, and it's normally consists of at least a source code editors, build automation tools and debugger. Means IDE सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर है जो रेडी सोर्स कोड और ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, तो उसके लिए हमें कोडिंग वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। देन नाउ सी ऑन टेक्स्ट बुक पॉइंट्स, you can see the creating a form using HTML tags is tedious process because HTML लैंग्वेज है, उसमें हमें बहुत सारे टैग्स याद रखने पड़ते हैं। और जब भी हम कुछ फॉर्म बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं, कुछ भी वेब डेवलपमेंट के लिए कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे टैग्स टाइप भी करने पड़ते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हमारा जो भी वेब पेज है या फॉर्म है वो फास्ट नहीं हो पाता। A simpler method is use IDE. IDE का फुल फॉर्म है Integrated Development Environment. An IDE is software application that provides a complete facilities to programmer to develop software. It provides GUI means graphical user interface, text or code editor, compiler and interpreter and debugger. Composer, Eclipse, JBuilder and NetBeans are all examples of open source IDE. This is introduction about open source IDE. Our next point is introduction to Composer. So in this point we will learn about a Composer, what is Composer software and what about it. Composer is a freely ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट IDE, यानी कि आप कंपोज़र सॉफ्टवेयर को नेट की वेबसाइट पे से आप फ्रीली और इजीली डाउनलोड कर सकते हो, बिकॉज इट्स ओपन सोर्स है। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम http://www.composer.net। वेबसाइट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, www.composer.net। It provides a web page editor which has a simple graphical interface known as WYSIWYG. Means what you see is what you get. कंपोज़र में WYSIWYG उसका मतलब है कि कंपोज़र में आप जैसा वेब पेज क्रिएट करोगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। इट इज़ कंप्लीट अ वेब ऑथरिंग सिस्टम विच इंटीग्रेट्स वेब पेजेस डेवलपमेंट एंड वेब फाइल मैनेजमेंट। यानी कि कंपोज़र टोटली वेब ऑथोरेटिंग सिस्टम है, बिकॉज वो कम्प्लीटली वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। यानी कि कोई वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो
ऑनलाइन यूजेस के लिए फॉर्म क्रिएट कर सकते हो. ओके. Creating a new web pages using Composer is quick and easy. I have explained before 1 minute that key HTML have lot of tags. We have to remember lot of source codes and tags, so it's not easy. Then Composer is very quick and easy बिकॉज कंपोज़र में ऑटोमेशन टूल्स और ऑटोमेशन सोर्स कोड अवेलेबल है, तो हमें टैग्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है. The users can also edit the web pages by using the source code and making changes. Composer incorporates Site Manager which gives a rapid access to file on both of local machine and remote servers. आप लोकल मशीन यानी कि आपके पास है और रिमोट सर्वर पे भी कंपोज़र यूज़ कर सकते हो और कॉर्पोरेट कर सकता है. वेब पेजेस एंड एसोसिएट file can be uploaded to remote server within Composer. It also supports CSS cascading style sheet. Cascading style sheet वो चैप्टर 2 में इन डिटेल्स हम देखेंगे. Our next point, Composer layout. You can see here layout of Composer. कंपोज़र सॉफ्टवेयर का फर्स्ट जो स्क्रीन होता है वो ऐसा होता है कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये टाइटल बार है, अनटाइटल कंपोज़र लिखा है, फिर फाइल, एडिट, मेन्यू, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स वगैरह ये मेन्यू बार है, फिर न्यू, ओपन, सेव, पब्लिश, ब्राउज, अनडू, रीडू, एंकर, लिंक ये वगैरह कंपोजिशन टूल बार है. और CSS का आगे मैंने बताया तो ये CSS बटन है और हमारा कंपोज़र का आइकॉन ये ऐसे राउंड और येलो शेप में है वो है. फिर बॉडी टेक्स्ट वाला जो लाइन है वो फॉर्मेट टूल बार 1 है और उसके नीचे है वेरिएबल विड्थ वाला, वो फॉर्मेट टूल बार 2 है. यहाँ पे आप साइट मैनेजर देख सकते हो, ये साइट मैनेजर है, जो भी हम वर्क करते हैं उसका मैनेज करता है. और ये साइट मैनेजर ऑलरेडी ओपन ही होता है, बट उसको क्लोज़ करने के लिए आप F9 की प्रेस करोगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा. या तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोज़ बटन है, क्लोज़ बटन पे क्लिक करने से भी साइट मैनेजर बंद हो जाएगा. ये वर्क एरिया है, यहाँ पे हमें वर्क करना रहता है. और यहाँ पे डिज़ाइन, स्प्लिट एंड सोर्स ये 3 टैब्स हैं. और ये नॉर्मल वर्ड दिख रहा है वो एडिट मोड है. हियर 3 एडिट मोड अवेलेबल्स. नेक्स्ट वी विल सी दैट Composer toolbar. I will explain, and there are 3 toolbar in Composer: composition toolbar, format toolbar 1, format toolbar 2, edit mode toolbar and status bar also available. Composer sections, कितने sections है? In center of the window you can see 2 panes, Site Manager and blank web pages. Site Manager is powerful tool used to navigate within a site or between site. You can close the Site Manager pane by clicking on close button or press F9. I have explained that you can click on close button and press F9. The page pane shows a blank untitled web page. Composer mode. The button right side of window shows the edit toolbar with a 3 viewing modes: normal mode, HTML tag mode, प्रीव्यू मोड. नॉर्मल मोड में आप जो भी पेज एरिया में वर्क कर रहे हो वो आप देख सकते हो. और HTML टैग मोड में आप HTML टैग देख पाओगे जो येलो कलर में मार्क किए होंगे. प्रीव्यू मोड में आपने जो भी वर्क किया है उसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा. हियर
There are three modes: normal mode, HTML tags mode, and third preview mode. 1. Normal mode. The normal view is very similar to preview mode. In this mode, table outline are visible. HTML tags mode. The HTML tags view to help those who are familiar with the HTML. A yellow marker is used to indicate start tag for all elements. Preview mode shows the page which is visible web browser. It does not follow and accept link. यानी कि प्रीव्यू मोड में आप लिंक लिंक फॉलो और एक्सेप्ट नहीं करेगा. Composer tabs. You can see the left side of page pane. There are three tabs available: the design tab, the split tab, and the source tab. The design tab is used to design the web page. The split tab display the HTML source of current element, and source tab it shows all details of the HTML code, helps in editing on source code. Other facilities of Composer software. On the bottom of the window, you can see the status bar. When click on any item in page, its structure appearing in the status bar. जो भी वर्क कर रहे हो वो विंडो के स्टेटस बार में आप देख पाओगे. वी कैन क्रिएट अ वेबसाइट बाय टाइपिंग URL index.html टू कलेक्ट एंड ओपन इट. आपको वेबसाइट में होम पेज बनाने के लिए index.html टाइप करना पड़ेगा. वी कैन कलेक्ट वेबसाइट बाय गिविंग अ एक्सटेंशन HTML और HTM. आप दो एक्सटेंशन से वेब पेज सेव कर सकते हो, HTML और HTM. कंपोज़र मेन्यू ऑप्शंस, यानी कि कंपोज़र में आपको कोई भी चीज़ शॉर्टली मीन्स ऑप्शंस कैसे फॉर्म कैसे ओपन करना है, रेडियो बटन कैसे लाना है, चेकबॉक्स कहाँ से लेना है, वो सब चीज़ें कहाँ से लेनी है और कहाँ से ओपन करनी है, उसके मेन्यू यहाँ पे मैंने टेबल से मेंशन किए हैं. तो टू व्यू द डिफरेंट टूल बार एंड स्टेटस बार, फाइल मेन्यू में व्यू में फिर शो और हाइड में जाना है. नेक्स्ट, इफ़ द फाइल हैज़ बीन ओपन रिसेंटली देन यू कैन ऑल्सो ओपन द फाइल फ्रॉम. तो फाइल में जाना है, फिर रिसेंट पेजेस में जाना है. टू क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग कंपोज़र, इंसर्ट में जाओ, फिर फॉर्म, फिर डिफाइन फॉर्म. इंसर्ट लेबल इंसर्ट करने के लिए तो पहले फॉर्म फिर डिफाइन लेबल. ऐड टेक्स्ट फील्ड, जब भी आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, वैसे भी लेबल के लिए जब टेक्स्ट बुक चाहिए तब आपको इंसर्ट में जाना है, फॉर्म, फिर फॉर्म फील्ड, फिर उसमें से टेक्स्ट बॉक्स. ऐसे ही बिल्कुल सेम रेडियो बटन लाने के लिए इंसर्ट, फॉर्म फील्ड एंड रेडियो बटन. ऐड चेक बॉक्स, बिल्कुल रेडियो बटन टेक्स्ट बॉक्स जैसे ही चेक बॉक्स लाने के लिए इंसर्ट, फॉर्म में जाना है, फिर फॉर्म फील्ड, चेक बॉक्स. टेक्स्ट एरिया किसके लिए हम यूज़ करते हैं, एड्रेस और डिस्क्रिप्शन वगैरह डिटेल्स डालने के लिए. वो हमारे पार्ट 1 वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है. तो इंसर्ट में जाने का, फिर फॉर्म फील्ड एंड टेक्स्ट एरिया. ऐड ड्रॉप डाउन मेनू लिस्ट, जब सिटी जैसा है जैसे ग्रुप ऑफ सिटीज़ डालना है तब हमें इंसर्ट, फॉर्म, सिलेक्शन लिस्ट वगैरह. ऐड बैकग्राउंड, यानी कि आपको बैकग्राउंड फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट में जाइए, फिर पेज कलर्स एंड बैकग्राउंड. हियर वी हैव completed our chapter 1. Today homework is that read and learn all MCQs from the Darpan book, and when school will be reopened we will start tests from these chapters. In this video I have brought important points for example, so observe every pages of videos and learn every points. And I think you should make the one note of these video pages. It will be helpful in exam. Thanks for watching my video. Good luck dear students, and for practical
please follow the Gujarati medium videos. Thank you.